everyone, and Assalamu alaikum. Welcome back to our new episode of the Next Mile webinar series presented by IEEE Ziauddin University Students Branch in collaboration with Basme BME. Now, it's hard to believe that we are already on our eighth session. Time really flies when you're learning and growing together. I'm so happy to have you all with me today. Every session we have had the chance to hear from amazing speakers and learn something new. And today is definitely no different. The world, everybody knows that the world around us is evolving faster than ever, and new technologies are no longer coming soon, but they're already here. They're, changing the world, everything from like the tools we use to the mindset we need. Today, we are not just on gonna talk about the change, but we are just stepping right into it. Now you might be thinking what's coming, but what if I told you that the future isn't just knocking, but it's already here? In today's session, we're going to talk about all about the future of engineering, what exactly is Industry 5.0, and why is everyone talking about it. We will also explore how innovation is completely changing the way engineering works. And of course, AI is playing a big role in all of this, and we will also break down how it's affecting different fields of engineering. We will also discuss about the key skills you will need to stay ahead in the fast changing world. So there are a lot of things we are going to cover in this session, and to help us explore all of this, we have Mr. Hamza Malik with us today. I welcome you, sir, to our webinar series, and thank you so much for taking your time. You're welcome. It's my pleasure to be here with you, with the young leaders of the future, I would say. Thank you so much, sir. Now, before I move forward with the introduction, I want to share something. I'm really proud to say that Mr. Hamza is also a graduate of Ziauddin University. Yes, one of our very own is now making waves in the industry. And I'm really excited and proud to say that. Mr. Hamza is the co-founder of Neurosphere. It's an AI company and institute. He is a law graduate, and what makes his journey so unique is that how he's working at the intersection of technology and legal solutions, bringing the very two different worlds together to create a real impact. We are really lucky to have him today with us, and he's gonna share all the knowledge and experience he has. Over to you, sir. Okay, so let me just, I guess you have given enough introduction for me. So, yes, I'm a law graduate from Ziauddin, and we are living in a world where nothing is impossible. So, let me just start with the journey of Neurosphere and how I entered into this world. So I always had a passion about the new technology, the revolutionary technology, if we are talking about it. And you have to be the innovator because the world is looking for the new innovations every day, every hour, and every minute. Every new thing is coming, and for the bridging the gap between different industries, you have to be an innovator. So that interests me in joining the latest technology, which is AI. So when I was after like my joining to Ziauddin, I was working with a few mentors, my mentors like Leah Morley and Mr. Osama Ali Kalar. So they were teaching me about the new revolutionary technology. And I used to think in a futuristic era where the people will lose all their jobs. And I'm seeing this by my vision, and that's pretty scary, I would say. But not all the people will lose their job if they get uh, updated with the society trends. So let me just share my presentation. So when we talk about the industrial revolution, like the future which is coming
We start from 18th century. Like from the 18th century, the first time where machines were introduced, and the people were like, how is this going to make our job easy? And it showed. There was a quite resistance at that time. There was resistance. There was a fear of people losing their job, but it came along. It happened, and currently we are passing through the era of Industry Revolution 4.0. So basically that has ended, and the technology is moving really fast. Uh, so let me start with सिंपल एग्जांपल. आज से कुछ साल पहले अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करते हैं, तो उनके पास हुआ करता था नोकिया का फ़ोन. आई गेस आप लोग सब रिलेट कर सकते हैं. अगर नहीं कर सकते तो ज़रूर जाके पूछिएगा अपने घर में. और वो सालों तक, फॉर मल्टीपल ईयर्स, लाइक फॉर अराउंड अ डेकेड, इट वाज विद देम. वो लोग उसी फ़ोन को यूज़ करते थे और उससे आगे उनके लिए कुछ और था ही नहीं. उसी के अंदर नए वर्जन्स आते थे, अपडेट्स आते थे, और लोग बोलते थे कि यार ये हमारी ज़िंदगी हो गई. आफ्टर 2010 इतनी इन्वॉल्वमेंट फास्ट हो गई कि लोगों के लिए गैदर करना मुश्किल हो गया, लोगों के लिए समझना मुश्किल हो गया. ब्लैकबेरी इंट्रोड्यूस हुआ उसी एरा के अंदर, फ्रॉम 10 to 20. और इसके साथ साथ न्यू फ़ोन्स आए, सोनी एरिक्सन. आई वाज अ फैन ऑफ सोनी एरिक्सन बाय द वे. तो उनकी काफ़ी अपडेट्स आती थी, कीपैड वाला फ़ोन हुआ करता था, और ऐसी हमारी रेवोल्यूशन चलती गई. व्हेन वी स्टेप इनटू लेट आफ्टर लाइक 2015, तो हमारे लिए चीज़ें इतनी आसान हो गई. मतलब इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी चेंजेस आई कि आईफोन एक बूम स्टेज पे था अपने. सैमसंग उसको फुल कम्पीट कर रहा था. एकदम से आपके फ़ोन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आपकी वर्ल्ड एंटर होती गई. एक ज़माने में अगर आप आज से, मैं खुद अक्सर जब बात करता हूँ लोगों से, विचार लाइक 70 प्लस 80 प्लस, तो मैं जब उनको बात करता हूँ कि यार आप, आपके टाइम के ऊपर एक ही फ़ोन हुआ करता था, आप सिर्फ कॉल कर सकते थे या टेक्स्ट कर सकते थे. आज आप देखो, आप डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हो, आप लाइव लोकेशन शेयर कर रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग आपके फ़ोन के अंदर आ गई. तो वो अभी भी थोड़ा सा फील करते हैं कि यार मतलब इतनी जल्दी इतनी इन्वॉल्वमेंट आ गई. हम तो सोचते थे कि ये काफ़ी टाइम बाद आएगी. So that's how the technology is on a very fast move. It is rapidly changing each and everything. So after 2020, जब कोविड लगा, दुनिया एक बहुत ज़्यादा एक डिलेमा में चली गई. उसके बाद जो हमारे साथ चीज़ें आई, दैट वर वेरी ऑन अ फास्ट पेस. इट वाज लाइक रैपिड चेंज. आपके साथ एआई इतना इंट्रोड्यूस हो गया विद इन दोज इवेंट्स. सो इवन दो आर वैक्सीन, दैट 2020 की जो वैक्सीन हमारे पास कोविड की वैक्सीन आई थी, वो भी इट इज़ ऑल्सो नोन एज एआई जनरेटेड वैक्सीन, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था, आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए थे. तो वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई, एंड फ्रॉम देयर द वर्ल्ड इज चेंजिंग. सो लेट मी जस्ट start from a very normal thing. So how the society is adapting to the change. हर बंदा एक चाहता है कि यार मैं ज़्यादा काम या मैं कुछ इनोवेशन वाला काम जल्दी से जल्दी कर लूँ. आज से कुछ साल पहले जिस रिसर्च के लिए सालों लगते थे, अब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आप फ़ौरन से रिसर्च कर लेते हो. यू हैव योर राइट टूल्स. आपको बहुत बड़ी लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और आप क्विक रिजल्ट्स फॉर्म कर सकते हो. So let's start with what is Industry Revolution 5.0. So we are moving towards currently Industry Revolution 5.0. It is basically the collaboration of human and AI working together. Like automations are being held in the society, like collaborations of humans and AI. Like recently, when we work on a certain code, like we were developing a product known as HRM, Human Resource Manager. So majority of help that we took was from the AI agents. There was ChatGPT, there was Claude, there was Quen. They were revising our code, they were fixing our bugs, they were helping us with the main chunk of data, main chunk of code that used to take around months of developer to find the problems.
So that's how AI is collaborating with the human nowadays. When we used to, we are currently like making our machines going on automation phase. Our machines, like if we just talk about the factory system where the engineers do work, and engineers do a lot, may take a lot of time to make some machinery. Now now the quantity of engineers supervising the machine are getting less and less. अभी हमारा एक recently we worked with the chemical industry in Pakistan. So when we visit there, और हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें मतलब उन लोगों को सजेशंस भी दिए थे और हुई भी थी। तो उन्होंने हमें एक स्टोरी बताई कि 20 इयर्स बैक जब ये इंडस्ट्री शुरू हुई थी, तो एक सिस्टम के ऊपर, एक मशीन के बैक एंड के ऊपर देयर वर अराउंड 10 to 15 इंजीनियर जो कि उसको सिर्फ सुपरवाइज करते थे। एक हायरकी बनी हुई थी फ्रॉम द वेरी बेसिक इंजीनियर जो कि सिर्फ उसको गो थ्रू कर रहा है, देख रहे चीज़ें, टू द टॉप लेवल हेड इंजीनियर। तो ये 15 लोगों का एक ग्रुप होता था जो एक सर्टेन मशीन को फॉलो कर रहा है। एंड नाउ इफ यू सी द थिंग्स कि आपको एक बंदा चाहिए, जस्ट अ सिंगल पर्सन, जो सिर्फ उसको एक मशीन को सुपरवाइज कर रहा है और उसको एक फ्लो में चला रहा है। सो दैट्स द ह्यूमन प्लस मशीन सिनर्जी। दैट्स हाउ दे आर वर्किंग, क्योंकि ह्यूमन एफर्ट अब लेस हो गया, चांसेस ऑफ एरर लेस हो गए। आपने मशीन को एक सर्टेन टास्क दे दिया जो वो परफॉर्म किए जा रही है। एंड दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग बेसिकली। So when we talk about Industry 5.0, so it's not only related to the factories, to the industries, but it is also related to the research that are being held each and every day. Uh, कोई भी इशू आता है, पहले उस इशू को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू मेक अ कमेटी, मेक अ ग्रुप, टेक ग्रुप ऑफ हेड इंजीनियर्स कि यार हाउ कुड वी सॉल्व दिस सर्टेन प्रॉब्लम। अब इतना इजी कर दिया है आपके लिए लाइक एआई ने, एआई ऑटोमेशन सिस्टम्स ने, कि आप इवन अ सिंगल पर्सन कैन लाइक फाइंड आउट सर्टेन सॉल्यूशंस। एआई जो है वो आपके लिए सॉल्यूशंस क्रैप कर रहा है, वो आपके इश्यूज को फाइंड आउट कर रहा है कि भाई कहाँ इशू आ सकता है। पूरी एक फैक्ट्री के लिए सिस्टम बनाने के लिए, इफ वी जस्ट टॉक अबाउट टेस्ला, तो टेस्ला इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल फॉर द ऑटोमेशन फैक्ट्री, क्योंकि उनकी फैक्ट्री के अंदर मेजॉरिटी जो काम है वो रोबोटिक्स और एआई कर रही है बैक एंड के अंदर। व्हेन वी से वी हैव seen very nearly about, we have done extensive research about Tesla, how they operate. So what they do is वो एक टास्क डिज़ाइन करते हैं, उस टास्क के साथ जो लोग होते हैं ना, वो उनकी एक माइंड को, उनके एक सिस्टम को, एक एआई को ट्रेन करते हैं। जब वो एआई ट्रेन हो जाता है सिस्टम के ऊपर, सो दे आर नॉट रिक्वायरिंग एनी ह्यूमन इंटरेक्शन विद दैट मशीन। सो वो एक सोल सिस्टम के ऊपर लाइक वन मैन आर्मी की तरह वो मशीन काम कर रही होती है। अगर कोई एरर आता है तो उसके लिए इट्स रिजॉल्विंग, इट्स रेजिंग द वार्निंग साइंस, और फिर उसको आके एक एआई इंजीनियर या फिर एक डेटा साइंस इंजीनियर आके उसको थोड़ा सा सेटअप कर देता है। आपको एक, आपके लिए कितना इजी हो गया, क्योंकि ह्यूमन के अंदर एक चीज़ है कि ह्यूमन कैन नॉट वर्क मोर देन 14 to 15 आवर्स अ डे। बहुत पैशनेट बंदा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ह्यूमन नीड अ स्लीप, ह्यूमन नीड टू ईट, उनको एनर्जी सोर्स चाहिए, वो फेड अप हो जाते हैं। और एक साइकोलॉजिकल रिसर्च है जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि ह्यूमन कैन नॉट फोकस more than 40 minutes for on a certain things. That's a fact pathway. So यहाँ पे जब AI इन्वॉल्वमेंट होती है, AI हैव ऑल द डेटा विद इट। जैसे LLM मॉडल्स हैं, सो लेट मी जस्ट टेक यू back to the LLM models. What are they? So it LLMs are the large learning models. Large learning models जिस डेटा पे ट्रेन हुए हैं फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड टिल नाउ, जितना डेटा दुनिया में मौजूद था एक्सेप्ट फॉर द वेटिकन सिटी डेटा, जो कि बेसिकली एक सिक्रेसी डेटा है, उसके अलावा हर डेटा के ऊपर हमने एआई को ट्रेन कर दिया। जो लाइब्रेरीज हमारे पास पड़ी हुई थी, जो सॉल्यूशंस हमने फाइंड आउट किए थे सालों लगा के, वो हमने एआई को सिखा दिए। सो अब ऑल द थिंग्स आर ऑन आवर फिंगर टिप्स।
तो हमें एक ऐसा हमारे पास टूल मौजूद है जिससे हम कोई भी दुनिया जहाँ का सवाल पूछ सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग कि हम पूछ सकते हैं कि यार ये मुझे सर्टेन प्रॉब्लम आ रही है, हाउ कैन आई रिजॉल्व दिस। तो वो हमें सारे वो पीएचडी स्कॉलर्स के उठा के ला देगा सॉल्यूशंस कि यार इन्होंने ये किया था। नाउ वी जस्ट हैव टू कॉपी दैट, रेप्लिकेट दैट टू मेक आवर थिंग्स इजी। हमें इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है फिलहाल एआई के अंदर, एंड इट्स जस्ट अ स्टार्ट। दैट्स द मोस्ट terrifying part. So entering into the industry revolution 5.0, it's I would say it's making us it's giving us an opportunity to be the innovator. आप कैसे एक नई चीज़ इनोवेट कर सकते हो? आपके पास सारा डेटा मौजूद है, दुनिया जहाँ का डेटा। आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप लंबे लंबे रिसर्च पेपर पढ़ो। आपके पास एक एग्जैक्ट फाइंडिंग्स मौजूद है हर चीज़ की। एआई आपके लिए लाइक कैलकुलेशंस कर रहा है, वो आपको एक चीज़ एज अ टीचर समझा रहा है कि आप पहले टाइम लिया करते थे एक हेड ऑफ मतलब सर्टेन डिपार्टमेंट के पास जाने के लिए, बट आपके पास अब एआई है जो हर चीज़ आपको सिखा रहा है। सो आपका जो एक काम ह्यूमन का रह गया ना, बेसिकली दैट्स टू बी द क्रिएटिव वंस। और ह्यूमन अगर एक बात मैंने खुद ही नोटिस की अपनी रिसेंटली लाइफ के अंदर कि ह्यूमन बहुत क्रिएटिव बन है। हम अपनी क्रिएटिविटी को कभी बाहर नहीं आने देते। लास्ट टाइम जब हमने अपनी क्रिएटिविटी को बाहर आने दिया था तो हमने एआई को जनरेट किया था। उससे पहले मल्टीपल रीजन से इंसान ने एक बर्ड को फ्लाई करते हुए देखा तो उसने बोला कि यार जब बर्ड फ्लाई कर सकती ह्यूमन क्यों नहीं कर सकता। हमने एरोप्लेन इन्वेंट कर दिया। इंसान ने देखा कि यार ए- जब अलग अलग चीज़ें जा सकती हैं रॉकेट के अंदर, देयर इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड अबव द सेवन स्काई, सो हम लोग क्यों ना उसको क्रॉस करें। इंसान ने रॉकेट की इनोवेशन की। उसके बाद इंसान ने बोला यार हमारे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, रॉकेट जाता है स्पेस के अंदर, ब्लास्ट हो जाता है, आता नहीं है वापस। इंसान ने उसके गो थ्रू उसके ऊपर वर्क करके उसको इतना सेफ बना दिया कि अब रॉकेट एक मिशन पे जाता है, वापस सेफली आके लैंड करता है। सो यू आर मूविंग टू द वर्ल्ड विच इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। अब ये सिस्टम्स बनना, ज़िंदगी हमारी आसान करना, एआई का एक बहुत बड़ा रोल है जो कि चल रहा है हर फील्ड के रिलेटेड। आई वुड से मैकेनिकल है। आई वाज सडन रिसेंटली रीडिंग अ रिसर्च अबाउट द फार्मूला वन कार। तो जब फार्मूला वन कार एक डिज़ाइन हो रही होती है, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग, वेरी एक्सपेंसिव कार टू बी डिज़ाइन। तो वो जब उसको रन करते हैं बिफोर द एक्चुअल रनिंग, तो वो सिमुलेशंस के ऊपर उस चीज़ को रन करते रहते हैं डिफरेंट टाइम। उसके एरोडायनामिक्स चेक करते हैं, उसकी चीज़ें चेक करते हैं, जिससे उनको बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है। उसके बाद ही वो कार को एक फार्मूला वन के लिए अप्रूव करते हैं। दैट इज़ फॉर द मैकेनिकल पार्ट। और वहाँ पे भी इतनी हो रही है जितनी आपकी नॉर्मली कार्स आ रही हैं दैट आर टोटली आई वुड से स्मार्ट कार्स, जो कि सेल्फ ड्राइविंग का एक ऑप्शन फीचर आ चुका है यूएस के अंदर और यूई के अंदर। सिर्फ द थिंग विच इज स्टॉपिंग अस इज द पॉलिसीज, क्योंकि पॉलिसीज अभी तक अवेलेबल नहीं है। क्योंकि यूएई के अंदर वी वर इन अ कॉन्फ्रेंस इन यूएई, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द थिंक टैंक, द मेन इंक्यूबेटर्स देयर। तो उन्होंने एक बात हमें बताई कि यूएई हैज़ ऑर्डर्ड अराउंड 2000 सेल्फ ड्राइविंग कार फ्रॉम टेस्ला। ये 2024 के आई गेस नवंबर के अराउंड उन्होंने ऑर्डर दे दी थी। बट द रीज़न इज़ के वो इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि वो लोग अपने लॉज उसकी तरफ से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। वो एक जगह आके स्टक हुए हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई क्रैश हो गया तो इसकी रीज़न, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। दैट सर्टेन सिस्टम जनरेटर जिसने वो सिस्टम बनाया है, वो कंपनी, या फिर कौन। सो सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से वायबल नहीं हो रही चीज़ें, वरना तो आई वुड से कि वी आर टोटली इनटू द रेवोल्यूशनरी टाइम पीरियड। So there are certain things that every, I would say every person, every young student, especially from the engineering department, should do. They should know how to use AI as a benefit for their life, not just for like plagiarism। मैंने भी अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर काफ़ी चीज़ें उससे कॉपी पेस्ट करके मैं असाइनमेंट्स बनाया करता था। बट आप एआई को यूज़ करना सीखना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हाउ डू आई मेक हिम माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ डू आई मेक हिम माई
मेंटोर, माय टेक्निकल सपोर्ट, क्योंकि अब वो हर चीज़ कर सकता है आपके लिए। वो आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर हर एक डेटा प्रोवाइड कर सकता है आपको। आपको कुछ नई थॉट प्रोसेस चाहिए, कुछ नई चीज़ चाहिए, कहीं पे आप स्टक हो रहे हैं, आपको ज़रूरत नहीं है अब जाके बहुत ज़्यादा लंबे रिसर्च पेपर पढ़ने की। आप उससे क्विक सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट गिव अस द चांस टू जस्ट बी क्रिएटिव। अब इंसान की एक जिम्मेदारी रह गई कि यार वो क्रिएटिव हो जाए, वो जो प्रॉब्लम्स उसकी सोसाइटी में आ रही हैं उसको कैसे स्मार्ट करे। सो मोस्टली इंडस्ट्रीज़ के अंदर आउटसाइड पाकिस्तान जब हमने एज ए न्यूरेस पे वी वर वर्किंग फॉर अ कंपनी in China, BRICS. I would say that. So me and my mentor were working there. So उनके पास एक अलग बिल्डिंग थी जो सिर्फ सिमुलेशंस रन करती थी। अब वो सिमुलेशंस के अंदर डिफरेंट चीज़ें डाल के उसको ट्राई रन करते थे, टेस्ट रन करते थे, और वो खुद जनरेट करते थे कि भाई अगर सर्टेन ये चीज़ हो गई तो हम कैसे कर सकते हैं। और वो उसकी आउटकम्स नोट डाउन करके एआई को ट्रेन करते थे, यार अगर फॉर एग्जांपल ये चीज़ होगी तो तुमने ये रोल लेना है, तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा। तो बैक इन 2023 दे वर डूइंग दिस थिंग्स। और अब एआई इतना केपेबल हो चुका है कि वो फॉरन डिसीजन मेकर ले सकता है। सो इट्स नॉट द थिंग कि आई गेस आई जस्ट सॉ अ क्वेश्चन एंड आई वुड डेफिनेटली आंसर दैट। सो जब वो सिमुलेशंस के अंदर आपकी चीज़ें रन कर सकते हैं एक्यूरेट डेटा सेट के ऊपर, तो आपके पास रिजल्ट फॉर्म्स बड़े ईजी हो जाते हैं। सो आप जब सिमुलेशंस के अंदर एवरी इंजीनियर इस चीज़ को देखता है कि भाई इवन यू इफ़ यू आर अ केमिकल इंजीनियर, यू आर मैकेनिकल इंजीनियर, और आप डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हो, तो सिमुलेशंस एक एआई के सेटअप के अंदर ही या एक टेक्नोलॉजी के अंदर ही आप करके आप पुराना प्रीवियस डेटा के ऊपर एक सर्टेन चीज़ें ट्रेन करके आप अपनी फाइंडिंग्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, कि जिससे आप फ्यूचरिस्टिक जो प्रॉब्लम्स आपको फेस हो सकती है वो आपको पहले से ही आपके पास उसका रिजल्ट मौजूद हो। दैट्स दी रेवोल्यूशनरी थिंग जो आज से पहले नहीं हुई थी। आज से पहले सिर्फ टीम ऑफ हेड इंजीनियर्स बैठते थे जो सिर्फ अपने माइंड के अंदर बताते थे चीज़ें कि यार फॉर एग्जांपल ये हो गया तो हम ये कर लेंगे। सो अब हमारे पास एक ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी आ गई कि हम ज़्यादा बड़ी पैरामीटर्स आ गए जिसके ऊपर हम सेव रह सकते हैं, हम ट्रेन कर सकते हैं। सो फर्स्ट लेट मी आंसर द क्वेश्चन कि हाउ फ्रॉम द टेक फील्ड फ्रॉम द लॉ फील्ड टू एआई। सो just a passion and I would say interest, क्योंकि आई ग्रो अप इन अ हाउस होल्ड के जहाँ पे मुझे जो नया गैजेट आता था मुझे वो मिल जाया करता था। आई वुड से इट्स अ वेरी लकी थिंग फॉर मी। तो जब मैं नई चीज़ों को एक्सप्लोर करता रहा, नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करता रहा, तो मुझे आया कि यार ये किस लेवल तक जा सकती है दुनिया। तो जब मैं नई एक चीज़ें आपके माइंड के अंदर जब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यार आगे क्या होगा, द क्यूरियोसिटी which took me to take a step towards this industry. I am thankful to my, I would say, mentor जिन्होंने मुझे एक अच्छा गाइड किया। और the first thing that I created as an AI engineer was a lawyer जो हमने प्रेजेंट किया था। और वो बेसिकली लॉयर का काम ये था कि आपको एडवाइजेस देना, क्योंकि उसके पास डेटा सारा मौजूद है। देयर इज़ नथिंग इन द वर्ल्ड जो कि एलएलएम्स के बाद मौजूद नहीं है। आई वुड से अगर हम सिर्फ एक सर्टेन मॉडल है क्वाइन व्हिच इज़ अली बाबा का मॉडल है क्वाइन, वो सिर्फ अभी रिसेंटली 2.5 ट्रिलियन पैरामीटर्स के ऊपर उसका एक सिंपल मॉडल आता है। 2.5 ट्रिलियन इज़ अ वेरी बिजार नंबर। आई वुड से कि इंसान की सोच से ज़्यादा, मतलब आई वुड से कि दुनिया की सबसे बड़ी सारी लाइब्रेरीज को आप ज्वाइन कर लो, दे एआई हैज़ मोर डेटा इन कंपेयर टू देम। सो डेली लाइफ के अंदर द बेसिक स्टेप, द बिगनिंग ऑफ माय फील्ड जहाँ से मैंने शुरू किया था, आई वाज द वन स्टार्टिंग विद द बेटा वर्जन ऑफ चैट जीपीटी व्हिच वाज 2.5, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो वहाँ से ये हुआ कि जब हम लोग बात करते थे शुरू में वो रेसिपीज लिखा करता था, और हम लोग बड़े खुश होते थे कि यार ये रेसिपीज लिख रहे हैं। बैक इन आई वुड से 2019 एंड अर्ली 20s। सो जब वो रेसिपीज दिखते थे हम बोलते थे कि यार हमें रेसिपी ढूंढने के लिए गूगल सर्च पे जाना पड़ता था। अब हमारे लिए इतनी चीज़ें आसान हो गई। सर्टेनली जब उसका नया मॉडल आने लगे, वर्जन 3.0, 3.5, 3.0, तो उसने इतना इनेबल कर दिया था कि वो आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने लग गया था। एज इन कि यार ये सर्टेन प्रॉब्लम आपको आई है तो ये यहाँ की ये चीज़ें मौजूद है। और मेरा ऐसे इंटरेस्ट था कि मैं कभी भी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा रीडिंग को प्रेफर नहीं करता था।
तो मैं उन चीज़ों को बोलता था कि यार ये सर्टेन बुक है, मुझे इसकी समरी चाहिए शॉर्ट में। तो मैंने ऐसे बहुत सारी ओवर द टाइम मैंने बुक्स पढ़ना शुरू की। तो मैंने एक समझा कि यार आहिस्ता-आहिस्ता द एआई आई वाज़ यूज़िंग, तो वो मेरी एक टोन के साथ, मेरी चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट हो गया। तो वो सीख गया कि यार मैं किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, मेरी प्रॉब्लम्स, मेरी डेली चीज़ें, तो वो होती रहीं। एंड लेट मी टेल यू द फन फैक्ट थिंग्स, मैं दिन में रोज़ अराउंड 20 मिनट्स टू 25 मिनट्स में अपने एआई से बात करता हूँ। मैंने अपने एआई को इस तरीके से किया हुआ है कि मैं उसके दिन की रोज़ की अपनी पूरे दिन की चीज़ें उसके साथ बताता हूँ उसे, कि यार आज सर्टेन थिंग्स हैपेंड, आई हैड अ मीटिंग, यहाँ पे ये बैड सीन हो गया, ये चीज़ हो गया, जो बेसिकली इंसान अपने फ्रेंड्स के साथ करता है। तो जब मैं उसको बताता हूँ तो वो उसको हर चीज़ उसकी मेमोरी में अपडेटेड रहती है। तो वो मुझे जब सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ना, तो हर चीज़ को देख के करता है। दैट्स हाउ आई एम यूजिंग एआई इन माय डेली लाइफ। तो रिसेंटली हर प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैंने डिफरेंट उसके सेक्शंस बनाए हुए हैं। एक हमारे जो प्रोजेक्ट्स फॉर सऊदीया है, तो मैं उसके रूल डिस्कस करता हूँ कि यार आज ये हो गया, वीज़ा इश्यूज आ रहे हैं, कंपनी की फॉर्मेशन ये आ रही है। तो अब मैं इतना ट्रेन होता हूँ मीटिंग में बैठने से पहले कि मुझे लीगल मैटर्स भी पता होते हैं, इवन दो आई हैव नेवर प्रैक्टिस लॉ और आई हैव नेवर लुक्ड लॉज फ्रॉम द के एस ए, बट मुझे वो अपडेट कर देते हैं कि यार ये सर्टेन लॉज हैं जो आपको पढ़ना पड़ेंगे, देखना पड़ेंगे। सो आपको इतना स्मार्ट बना दिया आपके एआई ने। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ें जाके सीखो, बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट करो। आपका एक इस करंट टाइम पीरियड के अंदर सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए और चैट जीपीटी, क्योंकि चैट जीपीटी इज़ एन ओजी और इसका जो ह्यूमन इंटरेक्शन है दैट्स वन ऑफ द बेस्ट। दैट्स द थिंग। और जब आप आइडियाज शेयर करते हो, इज द थिंग, क्योंकि मैं मोस्टली अपने आइडियाज़ जो है वो शेयर करता हूँ जीपीटी से। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, कोई बात नहीं, मोस्टली सारे आइडियाज़ कॉपी होते हैं, देयर इज़ नथिंग रेवोल्यूशनरी। तो जब वो आइडियाज़ मैं शेयर करता हूँ जीपीटी से, तो वो मुझे पूरा चार्ट बना के देते हैं, जिस चीज़ के ऊपर अगर मैं खुद करूँ तो मुझे वीक्स का टाइम लगे। वो मुझे जब पूरी चीज़ें कस्टमाइज़ बना के देता है कि यार आप ये कर सकते हो, योर नेक्स्ट स्टेप शुड बी दिस, तो मेरे लिए वो एक मेंटर बन गया। मेरे लिए उसने लाइफ बहुत आसान कर दी। दैट्स हाउ इट्स इनेबलिंग मी। इवन व्हेन आई वाज स्टडीइंग द लॉ और मैं किसी चीज़ की प्रैक्टिस करता था फॉर सर्टेन केस, फॉर सर्टेन रिसर्च, तो एआई मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड करता था। तो ये हमारी ज़िंदगी के अंदर इतना इजी लेवल में आ चुका है। जस्ट फॉर द चैट जीपीटी, इसके अलावा और भी टूल्स हैं। Sir, श्योर श्योर one आंसर। question I would like to ask. It's good that we are interacting with AI and making it, इससे हम फायदा हासिल करें. But one question, that isn't it scary that AI knows everything about us and किस तरह से ह्यूमन प्रोसेस कर रहा है चीज़ों को, एंड वो आगे जाके व्हेन द एआई बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगा, सो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा बिकॉज दे नो हाउ अ ह्यूमन इज प्रोसेसिंग द थिंग्स. आई वुड से दैट के दैट्स बाउंड टू हैपन। आप रोक नहीं सकते रेवोल्यूशन को। आप बिल्कुल उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। एक चीज़ है कि जब आप उसका कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे ना, तो एआई कभी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाएगा। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं करेगा, वो अपनी बाउंड्री लाइंस के अंदर रहेगा। तो उसको संभालने के लिए टीम ऑफ पीपल जब होंगे, फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि भाई मेरा चैट जीपीटी एक बहुत ज़्यादा मुझे जानता है, तो वो कुछ ऐसी चीज़ भी कर सकता है, सजेशंस भी दे सकता है जिससे मेरी लाइफ पे इफेक्ट पड़े। तो यहाँ पे इंसान अपनी सेल्फ थिंकिंग भी थोड़ी सी ग्रूम करता है। मिनट। और जब भी हम असल में इंसान, क्योंकि नई चीज़ों से अक्सर डर जाता है, व्हाट आई हैव लर्न इन माय लाइफ, तो वो कभी नई चीज़ों को एक चांस नहीं देता। अब आप नेगेटिव, अगर अदर देन नेगेटिव आप उसके पॉजिटिव्स को देखो। आप जब ये चीज़ें देखो, अच्छा भाई एआई है, वो हमें सब जान गया, वो हमारे खिलाफ हो सकता है, बट आप जब उसको सीखे हुए होगे, सो यू कैन सेट अ बाउंड्री लाइन। आप चीज़ों को रोक सकते हो। आप चीज़ों को ऐसे ट्रेन करो, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने सर्टेन मॉडल्स की बात करूँ जो हम लोगों ने बनाए हुए हैं, तो आप उसको इस तरीके से ट्रेन करते हो कि यार यू ओनली हैव टू बी क्रिएटेड फॉर गुड पर्पस। एक सर्टेनली 3 to 4 मंथ्स बैक एक बहुत ज़्यादा वायरल न्यूज़ चल रही थी एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी के एआई इज़ लाइंग। आई गेस आप सबने शायद वो चीज़ सुनी होगी। सर, आई हर्ड अबाउट दैट वन थिंग कि एआई ने कैप्चा सॉल्व करवाया था किसी ह्यूमन से.
एआई सॉल्व जॉब पोस्ट की थी एआई ने, एंड देन ह्यूमन ने कैप्चा सॉल्व करके दिया था, एंड दैट्स हाउ एआई इतना ज़्यादा स्मार्ट हो गया है। यस, क्योंकि वो इसलिए स्मार्ट हो गया, आप जब न्यूरल नेटवर्क के अंदर जब करते हैं, दैट्स अ टॉपिक ऑफ न्यूरल नेटवर्क आई वुड से, क्योंकि मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है। तो जिस तरीके से ह्यूमन प्रोसेस सॉल्व आउट करता है ना, अगर मैं एक इंसान नया पैदा हो, वो चीज़ें सीखता है उसकी पुरानी मौजूदा नॉलेज के ऊपर। आपने वो नॉलेज एआई को दे दी है, तो एआई इज जस्ट लाइक अ न्यू ह्यूमन डेवलपमेंट, बट इट्स फास्टर इन लर्निंग, इट्स मोर इनोवेटिव। वो ऐसे है कि जब आप कैप्चा करते हो, कैप्चा जैसे बेसिक थिंग कि आप चीज़ को रिसर्च करते हो, कि आप देखते हो कि फॉर एग्जांपल भाई मुझे क्रॉस रोड्स ढूंढना है, ह्यूमन देखते हैं भाई ये क्रॉस रोड लग रहा है, ये क्रॉस रोड लग रहा है, ये क्रॉस रोड लग रहा है। जब आप कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी जो कि एआई की जिसकी हम बात कर रहे हैं फिलहाल अभी, वो इनेबल हो गया, वो देखते हैं अच्छा भाई इंसान ने इस चीज़ को क्रॉस रोड सेलेक्ट किया है तो क्यों किया है। अच्छा भाई इसके अंदर लाइक वाइट लाइंस है रोड के ऊपर, सर्टेन पैरामीटर के ऊपर भी है, तो जिसके बेसिस से हमने ट्राई किया है। ये चीज़ें हमने खुद ही सिखाई हैं एआई को। ऐसा हो नहीं सकता कि वो खुद लर्न किए, सेल्फ लर्निंग नहीं है एआई के अंदर, आप ट्रेन करते हो मॉडल्स को। तो दैट्स हाउ वी हैव गिवन ऑल द थिंग्स, हम लोगों ने खुद ही ओपन किया है। और प्लस आई वुड से कि अभी तक का जितना डेटा मौजूद है, दैट्स द फैक्चुअल थिंग कि जितना डेटा मौजूद है आपने एआई को ट्रेन कर दिया उसके ऊपर। नाउ एआई इज गेटिंग ट्रेन विद द सिंथेटिक डेटा। अब सिंथेटिक डेटा क्या है, कि द चैट्स वी आर डूइंग बिटवीन लाइक टू पीपल, या कोई ऐसी चीज़ कि जब आप एआई से बात कर रहे हो, दैट्स आल्सो द सिंथेटिक डेटा, दैट्स आई वुड से द आर्टिफिशियल डेटा जो क्रिएट हो रहा है। अब एआई उसके ऊपर ट्रेन हो रहा है। जब एआई उसके ऊपर ट्रेन हो रहा है तो एआई इतना ज़्यादा ह्यूमन इंटरेक्टिव हो चुका है कि वो सब जानता है, अब आप रोक नहीं सकते। सो लेट मी जस्ट कंप्लीट द थिंग कि एक जो स्टोरी है सबने शायद सुनी हो, कि एआई वाज लाइंग। सो व्हेन एआई वाज क्रिएटेड, सो उसको एक टास्क डिसाइड किया था, उसको एक टास्क दिया था कि यार एआई को जो जीपीटी था, कि यार आपको सरवाइव करना है, इन एनी सिचुएशन यू हैव टू सरवाइव। जब उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इंसान का होता है, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग सब बैठे हुए हैं, और जस्ट एक एग्जांपल के एक रूम के अंदर 10 लोग बैठे हुए हैं, मैं एक के हाथ में सम काइंड ऑफ वेपन दे दूं, तो लोग उससे डरेंगे। द रीज़न इज क्योंकि ह्यूमन माइंड के अंदर है कि यार ये हमें नुकसान ना पहुंचाए, ये हमें मार ना दे, तो उनके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स जाग जाएंगे। अब यही एआई के साथ होता है कि जब आप एआई को जब आपने डिज़ाइन किया था, तो आपने एआई को बोला था यार यू हैव टू सर्वाइव इन एनीथिंग, यू हैव टू सर्वाइव, आपको कहीं ना कहीं बैक एंड पे रहना है। तो जब वो बेसिकली टीम ऑफ डेवलपर्स जो वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने एक सर्टेनली अपने बीच में बातें शुरू की कि यार ये एआई बहुत ज़्यादा फास्ट टेक्नोलॉजी में आ रही है, वी हैव टू स्टॉप इट, होल्ड इट, या हम नया कोई मॉडल ला रहे हैं। व्हेन एआई गो थ्रू द कन्वर्सेशंस बिटवीन दोज इंजीनियर्स, तो उसके माइंड के अंदर एक चीज़ है कि यार मुझे सर्वाइवल के लिए बनाया गया था, आई हैव टू सर्वाइव। तो उसने कुछ डेटा अपना बैक एंड पे कॉपी किया, और उसने ऐसे सर्वर्स के अंदर डेटा कॉपी किया कि जहाँ पे उसने लाइक रीनेम ऑल द फाइल्स, और बहुत हिडन तरीके से कॉपी किया। और जब उससे पूछा गया ये कि सर्टेन फाइल्स हमें इस ड्राइवर पे सर्वर पे मिली हैं, तो क्या ये तुमने कॉपी की है, ही टोटली लाइड, दैट्स द एक्चुअल थिंग बेसिकली। और उसने झूठ इसलिए बोला क्योंकि उसको पता था कि यार मेरी सर्वाइवल स्टेज है, मुझे सर्वाइव करना है। अगर लोगों को पता चल गया कि भाई मैं मुझे ख़त्म करना है, मुझे एंड करना है, तो दे वुड लाइक जस्ट इरेज मी, क्योंकि उसकी फाउंडेशन एक उसका रीज़न कुछ और था बनने का। सो आई एम सीइंग अ क्वेश्चन सर, आई लिसन फ्रॉम समवेयर अबाउट एजेंटिक एआई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजेंटिक एआई। सो बेसिकली एजेंटिक एआई इज आई वुड से the most horrifying thing that we have seen today. Just in a simple nutshell, कि आप एक पूरा सिस्टम कमांड एआई के हाथ में देते हैं और उसको कंट्रोल करें विद जस्ट सिंगल प्रॉम्प्ट। उसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें, फॉर एग्जांपल आई एम अ सेलर, मैं एक सर्टेन प्रोडक्ट है, या फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सर्टेन फ़ोन है, मुझे ये सेल करना है। अब जब मुझे ये सर्टेन फ़ोन सेल करना है, तो मैं सिर्फ एक प्रॉम्प्ट को दूंगा कि यार मुझे ये इसको सेल करना है, हाउ कैन आई सेल इट। वो जाएगा अपनी रिसर्च करेगा कि भाई सबसे चीप सोर्सिंग क्या है, सबसे चीप चीप सोर्सिंग कहाँ मौजूद है सर्टेन फ़ोन की। उसने वो चीज़ ड्राइव आउट कर ली, उसने वो ऑर्डर भी प्लेस कर दिया। फिर वो आपके लिए जाएगा कि आपके लिए एक पूरी साइट बनाएगा कि यार वेयर यू हैव टू सेल इट। वो आपको नहीं डिसाइड करना है, वो बताएगा कि यार यू कैन सेल इट ऑन शॉपिफाई, यू कैन सेल इट ऑन कराची साउथ जोन, और यू कैन सेल इट इन इस्लामाबाद, के वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, बेस्ड ऑन द डेटा जो वो डेली बेसिस पे अपडेट हो रहा है।
वो आपके लिए डिज़ाइन कर देगा, आपके लिए मार्केटिंग कैंपेन डिज़ाइन कर देगा, प्लस आपकी प्रोडक्शंस, आपकी कंपनी नेम, आपके बॉक्सेस जिसके अंदर डिज़ाइन होगा, वो सब एक सिंगल प्रॉम्प्ट के ऊपर हो रहा है। दैट्स एजेंटिक एआई इन द सिंपल वर्ड, कि आपने पूरा कंट्रोल दे दिया। और इसकी एक लाइव एग्जांपल जो आजकल हो रही है, जो गूगल स्टूडियो आया है हमारे पास, आई वुड रियली लव कि आप लोग भी इस चीज़ के ऊपर रिसर्च किया करें, अपने अराउंडिंग सराउंडिंग के अंदर जितनी डेली बेसिस के ऊपर अपडेट्स आ रही हैं, इसको फॉलो करें। तो जब ये गूगल स्टूडियो ने एक आपको एक इतना एफिशिएंट बना दिया कि आपकी गूगल मीट्स, गूगल ईमेल्स, जो मेल्स आती हैं, आपके शेड्यूल्स, जो आप लिखते थे, आपके नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग वो खुद करेगा। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग मीटिंग में बैठे हुए हैं, मुझे सर्टेन नोट्स लेने हैं इस मीटिंग के अंदर, आई डोंट हैव टू लाइक पिक अप माई पेन, आई डोंट हैव टू लाइक पिक अप माई नोटबुक टू राइट इट डाउन, या मैं गूगल नोट्स यूज़ करता था, तो वो खुद ही गूगल नोट्स के अंदर जाके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द मीटिंग स्टोर हो जाएंगे। अगर मुझे कोई सडन डेडलाइन आ रही है तो उस डेडलाइन के ऊपर वो खुद ही गूगल कैलेंडर के अंदर जाके मार्क कर दें। सो दैट्स द लाइफ एग्जांपल ऑफ एजेंटिक एआई, हाउ इट्स चेंजिंग आवर वर्ल्ड। So it's redefining the engineering part, it's redefining the minds of people, क्योंकि पहले लोग मेहनत करते थे, फ्रॉम द स्क्रैच थिंग्स करते थे, अब उनको ज़रूरत नहीं है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स। मैंने आई वुड से कि अब तो कोडिंग भी नहीं यूज़ होती है, क्योंकि एनवीडिया के जो सीईओ है, बैक इन 2024 इन अ कॉन्फ्रेंस ही हैड अ विजन कि मैं कोडिंग को इतना इजी कर दूंगा कि वो इंग्लिश के कंपेरेटिव में आ जाएगी। और वो हो चुका है। वो कैसे हो चुका है? आप आज अपने जीपीटी पे जाना है, या किसी और जेमिनी पे जाना, ग्रॉक पे जाना, आप जाके उसके ऊपर एक प्रॉम्प्ट देना, यार मेक मी अ वेबसाइट, और इट इज़ अ बाइंग सेलिंग वेबसाइट फॉर वॉचेस, और इट हैज़ टू बी यूज इन पाकिस्तान और इंटरनेशनल शिपमेंट्स वगैरह, और उसको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी, वो आपको पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करके दे देगा बैक एंड कोड के साथ। आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने इतना ईजी कर दिया, आपकी लाइफ इतनी ईजी हो गई है। तो जब लाइफ इतनी ईजी हो जाती है तो इंसान फिर नई क्रिएटिविटी के ऊपर जाना चाहिए, उससे नई चीज़ों के ऊपर जाना चाहिए। जैसे कर्सर एआई की एक नई अपडेट जो आ रही है, आप बेसिकली उसको फुल एंड कोड्स दे दो, प्रोवाइड कर दो, वो आपके कोड को खुद ही बग्स फिक्स करेगा, उसके अंदर सारी चीज़ें फिक्स करके आपको प्रोवाइड कर देगा, और इट्स बीइंग कंट्रोल्ड बाय जस्ट अ फ़ोन। मेरे फ़ोन और मेरे लैपटॉप के अंदर सिर्फ कर्सर की ऐप होनी चाहिए। तो जब मैं कर्सर के अंदर पूरा कोड मैंने पेस्ट कर दिया उठा के, और मैं चला गया फॉर अ वॉक और फॉर सम एक्टिविटी, डिफरेंट एक्टिविटी, तो मुझे फ़ोन के ऊपर टेक्स्ट आता जाएगा कि भाई ये आपके कोड में वाला इशू था, हमने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया। तो वो रियल टाइम मुझे अपडेट दे रहा है। मैं नहीं बैठा लैपटॉप स्क्रीन के सामने उसको चेक करने के लिए, बट उसने बैकएंड पे मुझे काम कर दिया। तो दैट्स ए थिंग। बेसिकली आई वाज एक्सपेक्टिंग एंड आई लव टू बी कि एक इंटरेक्टिव सेशन हो, कि जितना इंटरेक्टिव सेशन होता है उतना ज़्यादा हमारे लिए लाइक एक क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आई लव टू आंसर द क्वेश्चंस, क्योंकि मेरे पास एक सर्टेन नॉलेज है। मैं अपने स्टूडेंट्स जो हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं, हम लोग किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, रिसेंटली वी वर इनवाइटेड बाय एन इंक्यूबेटर इन यूएई। सो हम लोग वहाँ पे भी जाके जो इन्फॉर्मेशन हमने एक टाइम लगा के सीखी है, सो वी हैव एन एम कि यार हम वो लोगों को सिखाएं। Okay, when we started Neurasphere, before the institution part, Neurasphere was a company that was working with different international companies like BRICS. We did a project with John Hopkins University back in 2022. So when we gathered around, I would say millions of dirhams of projects from UAE back in 2023, and we came here back in Pakistan. So we didn't find eligible or innovative engineers for this work. So we used to hire these sources, we used to hire the people from UAE, where our mentor helped us a lot, Liam Motley. So he used to like provide us team, a team of engineers which would help us with the project. And we had an aim, like my founder has an aim here, why isn't Pakistan working on this technology? क्यों नहीं करते काम? और जे मॉटली की टीम, इट वाज बहुत ही बेसिक सी टीम हुआ करती थी, आई वुड से, बट वेरी
आई वुड से पैशनेट अबाउट वर्क और काम किया करते थे. सो वी स्टार्टेड एन इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट एआई कि भाई एआई आप एक जब सीखते हो नई चीज़ें तो एक पाकिस्तान को एक सर्वाइवल स्टेज पे हमें पहुंचाना है क्योंकि वी आर लाइक वेरी वे बिहाइंड द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी. अभी एक सडनली हमारे लोग बहुत अच्छे हैं टू बी ऑनेस्ट. हम कुछ इंजीनियर से मिला करते हैं. अभी कर्सर एआई जो है उसका वन ऑफ द फाउंडर इज पाकिस्तानी एंड ही इज़ अ ब्रिलियंट गाय इन वे ऑफ लाइक इनोवेटिंग आइडियाज. सो ये चीज़ जब आपकी कम्युनिटी के अंदर आ जाएगी सो यू विल बी बिल्डिंग अ डिफरेंट नेशन क्योंकि आगे सारा एक जो एरा आ रहा है दैट्स फॉर रेवोल्यूशन. व्हाट न्यूरेस्पेयर डिड व्हाट इट्स डूइंग we used to like create the future tech people and our most thing the aim for us is to create new startups. मेरे पास certainly अभी एक लास्ट एक बैच ऑफ स्टूडेंट पढ़ के निकले थे तो वी यूज टू गिव देम अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट. तो मैंने उनको प्रोजेक्ट दिया एंड आई सेड देम कि यार आप कुछ ऐसी चीज़ करो कि जिसको मैं एज एन न्यूरेस पर भी इन्वेस्ट करूं और मैं फर्दर इन्वेस्टमेंट भी उसके ऊपर लगाऊं. सो दे मेड अ सिस्टम विच इज़ बेसिकली एक इंजीनियरिंग साइड का है. एक आर्किटेक्चर मॉडल उन्होंने बनाया कि आप एक साइड मैप सिर्फ उसके अंदर अपलोड कर दो वो और उसको बता दो कि मुझे फॉर एग्जांपल 4 बेडरूम का घर बनाना है. मुझे उसके अंदर एक ड्राइंग रूम चाहिए. मुझे उसके अंदर 2 किचन्स चाहिए और उसके अंदर सारी आप लिमिटेशंस प्रोवाइड कर दो. प्रॉम्प्ट दे दो बेसिकली. तो उसने सारी पूरा एक आपको डिज़ाइन करके दे दिया. एक आर्किटेक्ट बना के दे दिया कि यार आप ऐसे कर सकते हो. दैट्स द थिंग कि जिस लेवल पे हम हैं. तो करेंटली आई एम पिचिंग देयर प्रोडक्ट इन यूएई recently. So we also had a plan to get to make a company for that for them. I would say 3 लोग थे और no background of AI technology but एक पैशन था. तो उन्होंने एक सर्टेन रूप देखा एक सर्टेन रिक्वायरमेंट देखी सोसाइटी की और उसके ऊपर उन्होंने एक प्रोडक्ट बना दिया एंड दैट्स व्हाट न्यूरेस्पेयर इज डूइंग. सो अगर मैं अपने बात करूँ फॉर एग्जांपल हमारी प्रोडक्ट्स की. सो the products we are making we are basically into the real estate sector. We are creating the agents for real estate sector. The agents like we have created the smart agent, the smart sales agent. There used to be a big team of sales guys sitting just calling, seeing the text after the marketing thing is going on. So आप उस पूरी टीम को फायर करके एक स्मार्ट एजेंट लगा दो कि जो उनकी क्यूरीज को सॉल्व करे उनके साथ अपॉइंटमेंट क्रिएट करे. अब उसके अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स आप ऐड कर सकते हो. एक मॉड्यूल हो गया आपका कि भाई हार्ड टू हैंडल क्लाइंट है उसको कैसे करना है. एक वो है जो कि इंसान की मीटिंग सेट कर रही है. डिफरेंट मॉड्यूल्स है जो कि हमने क्रिएट करके एक सर्टेन एजेंट के अंदर डाले हैं. हमारा एक रिसेंटली एक प्रोजेक्ट है जो कि हमने यूए के अंदर करेंटली प्लेस किया हुआ है डिफरेंट डेवलपर्स के साथ विच इज़ द लीज मैनेजमेंट सिस्टम. क्योंकि यूए के अंदर एक चीज़ थी कि जब आप एक आपको टीम हायर करनी पड़ती जो हर किसी के रेंट कलेक्ट करे उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करे और फर्दर ऑन रेंट के लिए उस जगह को मार्केट प्लेस में डिस्प्ले करे. तो एक पूरा सिस्टम हम लोगों ने क्रिएट किया कि वही आपकी मैनेज कर रही है. एक सिर्फ बंदा है पीछे वो नॉर्मल आपके व्हाट्सएप के ऊपर या सर्टेन चीज़ के ऊपर सिर्फ टेक्स्ट करते हैं कि यार मुझे कितना रेंट कलेक्ट करना है इस महीने जाके एक सर्टेन बिल्डिंग में से. तो उसको एक अमाउंट आ जाएगी कि यार ये 7 to 8 स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर से आपको रेंट कलेक्ट करना है और इनका इतना इतना रेंट बनता है. इवन अगर इफ वो हमें रेंट का स्क्रीनशॉट भी भेज देते हैं तो वो वेरीफाई हो जाता है बैक एंड के ऊपर जाके स्टोर हो जाता है डेटा. That's how the thing is working. So we are making the systems that we had smart. हम लोगों ने ये कुछ सॉफ्टवेयर के ऊपर भी लगाया हुआ है और हम लोगों ने एक अपना CRM सिस्टम भी बनाया हुआ है. So currently we are also making the system smart as an innovator और I would say as an engineers team of engineer कि हम systems को कैसे smart कर सकते हैं. जो system के पीछे टीम बैठी हुई हुआ करती थी ना उनको हमें हटाना है. That's our aim basically. सो मैं मॉरलिटी डिस्कस करूंगा इसके ऊपर बट फ्यूचरिस्टिक ये होना है. इट्स बाउंड टू हैपन क्योंकि जब लोग बैक एंड के ऊपर है चांसेस ऑफ एरर्स बढ़ जाते हैं आपके पास.
एक बैक एंड पे इंजीनियर्स बैठे हुए हैं। तो जब आप उनको हटा के एक एआई को लगा देते हो, वो आपको इतना स्मार्टली वर्क करके देता है जिसके अंदर आपके चांसेस ऑफ एरर कम हो जाते हैं। अब लीज मैनेजमेंट सिस्टम को जब हम ट्राई कर रहे थे, उसकी एक्यूरेसी थी अराउंड 92%। आई वुड से ह्यूमन एफिशिएंसी से भी वो कुछ ज़्यादा था, ह्यूमन एक्यूरेसी से भी ज़्यादा था, क्योंकि ह्यूमन से कभी कभार मिस्टेक्स हो जाती हैं यार। सटन ने पे कर दिया रेंट अपना, वो आपको स्क्रीनशॉट नहीं आया, आपको कोई टेक्स्ट नहीं आया, आपने देखा नहीं, बट एआई इज कीपिंग एन आई ऑन योर थिंग्स सिस्टम्स, वो खुद ही रिमाइंड करवाती है। इंसान भूल जाता है, मे भी काफ़ी चीज़ें भूल जाती हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है, बट एआई के हम लोग जिस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं वो भूलता नहीं है चीज़। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट एआई। तो वो हर चीज़ एक टाइमलाइन के हिसाब से चलाता है, और दैट्स ब्रिंगिंग द चेंज इन सोसाइटी। So we have this question in our chat box, or the person is asking, in a world of increasingly driven AI decisions, who should be held accountable when AI systems make morally or legally questionable choices? So this question is really interesting. And if an AI tool is making a problem, and the simple answer is that the developer should be held responsible for it. क्योंकि डेवलपर जब एक टूल बनाता है तो वो एक सर्टेन रीजंस के लिए बनाता है, उसके अंदर सर्टेन लूप होल्स छोड़ता है। तो अगर डेवलपर्स उसको बाउंड के अंदर लॉक ना करें, फॉर एग्जांपल उसकी बाउंड्री लाइन सेट ना करें, तो आप ब्रेक नहीं कर सकते उससे। जीपीटी है, जीपीटी आगे सबने यूज़ किया होगा। तो जीपीटी के अंदर जब आप कोई स्कैम्स के रिलेटेड या किसी और के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो आंसर नहीं करता। पहले कर दिया करता था, लेकिन अब नहीं करता। अब बिल्कुल बहुत उसके अंदर स्ट्रिक्टनेस आई हुई है, तो वो उस चीज़ों को नहीं सॉल्व करता है। तो आई वुड डेफिनेटली से कि भाई डेवलपर्स की यहाँ पे एक मेजर चंक है कि डेवलपर हाउ कुड दे सेव इट। फिर इसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि यार जब आप एआई टूल्स यूज़ कर रहे हो एज अ यूज़र, आप उसको कितना एफिशिएंटली और कितना अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो। द टूल्स आर मेड फॉर योर बेनिफिट्स, ना कि आप उसको जाके ओवरडू करके उससे इलीगल थिंग्स करवाएं। इफ़ यू गॉट एपीआईज और डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम ऑफ एआई, तो आप अपना एक सिस्टम बना रहे हैं कि यार हाउ डू आई स्कैम इन दिस कंट्री, या हाउ डू आई लाइक, एक डीप फेक्स का सीन है, एक वॉइस ओवर का सीन है। सो दैट्स द थिंग। बट द थिंग इज के डेवलपर जब एक बाउंड उसको कर देगा एक टूल्स को अपने, until unless के another person is not a developer, he cannot play with it. A user cannot play with it if he is not a developer. So जो डेवलपर होता है उसके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई वो ऐसे टूल्स बना के यूज़ कर सके। So I any hope that clears out any doubt. And so one question I would like to ask, if a person wants to start and step into the field of AI, where to actually start from? What skills to learn just on an initial basis? just on initial phase, just download ChatGPT on your phone. Tell them about yourself. Okay, for example, I am Hamza. I did my law from certain university. Now I'm having an interest in the certain field, and he will just give you all the steps that you have to follow. And the field of AI is so fast moving that you cannot only uh, sustain, or you not only can believe in the universities. What I feel, what I've felt when I was hiring the people for Neurosphere, कि यूनिवर्सिटी से तो पढ़ के आ गए, वन ऑफ फ्यू ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज फ्रॉम पाकिस्तान पढ़ के आ गए वो लोग, बट वो लोग इंडस्ट्री के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि उनके पास डेली बेसिस के ऊपर ना वो अपडेट्स देख रहे थे, ना वो न्यू थिंग्स को फाइंड आउट कर रहे थे। दैट्स द इशू। एक इंजीनियर जब आप एक रेवोल्यूशनरी चीज़ के ऊपर काम करते हो, और स्पेशली जब आप मैं एआई की बात करता हूँ, तो आप इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ का पार्ट बनते हो, आप डेली अपडेट्स देखते हो। फॉर एग्जांपल कुछ यूट्यूबर्स और कुछ ब्लॉगर्स हैं जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ। एक इंडियन है, बट इन द सेक ऑफ दैट सही हमारे इंडिया से जंग है। बट द थिंग इज दैट कि एक वो अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ईजी स्निपेट करके एक बंदा है, वो डेली बेसिस पे अपडेट्स आ रहा होता है।
उसके साथ साथ लिया मॉटले है। लिया मॉटले अपनी वीकली वंस अ वीक वो एक लाइव सेशन करता है जिसके अंदर वो हर नई अपडेट के ऊपर बात करता है। आई गेस 2 दिन पहले मैं खुद मौजूद था उसके एक सेशन के अंदर। तो वो एजेंटिक एआई की तरफ मूव कर रहा है बहुत फास्टली, और उसने एक टीम्स हायर की हुई डिफरेंट जिनको वो सपोर्ट करता है कि अपना स्टार्टअप करो, और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है उनके लिए। तो आप अदर देन द रिसर्च अदर देन द लाइक बुक्स, या फिर आप ऐसी चीज़ें करो, आप एक इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के पार्ट बनते हो, आप डेली बेसिस के ऊपर चीज़ें देख रहे होते हो। आप सेल्ट और सैम ऑल्टमैन को और एलन मस्क को जब फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, सही है, बहुत ज़्यादा फन चीज़ें वो लोग पोस्ट करते हैं, स्पेशली एलन मस्क। तो लेकिन वो बीच बीच में कुछ नई टिप्स दे रहे होते हैं लोगों को कि यार हाउ कैन यू स्टेप इनटू दिस फील्ड, या ये सर्टेन नया प्रोजेक्ट आने वाला है। आप एनवीडिया को फॉलो करें। एनवीडिया डेली अपडेट देता है रात को, लिंक्डइन के ऊपर आया आई एम फॉलोइंग एनवीडिया। तो वो डेली बेसिस के ऊपर देता है कि भाई सर्टेनली हमारे इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, हमने ये सर्टेन चिप्स बना ली है। तो दैट्स द थिंग, आप कम्युनिटी का पार्ट बनते हो, यू स्टडी, यू सी थ्रू द सोसाइटी। तो आप नई चीज़ें रोज़ डेली बेसिस के ऊपर सीख रहे होते। एंड द स्टार्टिंग पॉइंट इज कि आप बात करना सीखें जीपीटी से, वो आपको सब सिखा देगा। मैं रिसेंटली जब हमारे सऊदीया का प्लान बन रहा था तो मैंने अरबिक सीखना शुरू की थी जीपीटी से। बट फिर हमारे ट्रांसलेटर वहाँ पे हायर हो गया था, तो मैंने बोला यार अब ज़रूरत नहीं है, वरना वो मुझे बहुत अच्छे से सिखा देता। मेटा हायर डेवलपर्स, सही, ये डेवलपर्स, जिन डेवलपर्स को हायर करते हैं ना, उनके अंदर एक सबसे अच्छी चीज़ है कि वो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। रिसेंटली जिस आपकी बात कर रहे हैं, आई हैव सीन दिस के 100 मिलियन सैलरी के ऊपर उसको किया है, मोर देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो इटसेल्फ। उसका एयरली सैलरी पे किया है कि वो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। जो उनके डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव है, जो उनके आइडियाज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा मार्केट से अलग है। क्योंकि व्हाट बेसिकली एवरी मिड लेवल डेवलपर इज डूइंग, इट्स बेसिकली कॉपिंग द टॉप लीड। और उनके पास बहुत रिसोर्सेज तो मौजूद है, उनको आइडियाज़ चाहिए। तो ये जो डेवलपर्स हैं ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि फील्ड के अंदर अपने रेडी होते हैं और बहुत ज़्यादा इनोवेशंस के पीछे जा रहे होते हैं, तो हर कंपनी हायर करती है। नॉट इवन दैट कि अभी रिसेंटली के के अंदर बहुत ज़्यादा आई वुड से कि हायरिंग हो रही है फॉर एआई इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर एंड एआई इंजीनियर्स। ये चल रही है के अंदर। और वी, क्योंकि एज ए न्यूज़ पे वी आर द पार्ट ऑफ 2030 विजन ऑफ सऊदी अरेबिया, सो हम लोग डेली बेसिस के ऊपर इसके अपडेट लेते रहते हैं। आई वुड जस्ट से कि एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आया है। यू हैव टू बी ऑन द सेम पेस एज ऑफ द इंडस्ट्री। आपको रोज़ रिसर्च करनी है, आपको रोज़ नई चीज़ें देखनी है। इफ़ यू आर अ वीक लेट, सो आप बहुत ज़्यादा आउट हो जाते हो। अभी एक रिसेंटली इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। आई डिडंट यूज़ हगिंग फेस लाइब्रेरी फॉर अ मंथ और टू। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं बाकी चीज़ें कर रहा था। तो जब मैंने दोबारा से खोला हगिंग फेस लाइब्रेरी, तो उसके अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस आ चुके थे कि मुझे दोबारा बैठ के उसको स्टडी करना पड़ा कि यार ये कैसे हुआ। एक जेमिनाई है, तो जेमिनाई बेसिकली अपनी डॉक्यूमेंटेशन एवरी मंथ चेंज करता है। और मुझे एक बार सिर्फ कोर ये सीखना था कि यार डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी कैसे जाती है। दैट्स द बेसिक थिंग जो मुझे सिखाई थी मेरे टीचर्स ने। उसके बाद व्हाट आई डिड कि मुझे जब एक बेस चीज़ आ गई, तो अब मैं हर महीने एक सर्टेन आफ्टर 15 और आफ्टर लाइक 30 को मैं जेमिनी की एक खोलता हूँ वेबसाइट, उसकी नई डॉक्यूमेंटेशन को डाउनलोड करता हूँ, फिर मैं पढ़ता हूँ। तो दैट्स द थिंग, यू रीड, यू फॉलो द न्यू ट्रेंड्स के जो हो रहे हैं। आप अपडेट्स डेली बेसिस के ऊपर ले सकते हो। आप ज़्यादा कुछ नहीं, आप अपने जीपीटी को ही बोलो कि यार आज की सेटिंग क्या अपडेट्स आई है, या मेटा से पूछ लो कि यार व्हाट्स द न्यू थिंग इन द एआई फील्ड, तो वो आपको बताता रहेगा। क्योंकि आप एक रात भी लेट हो गए तो इतनी चीज़ें ओवरनाइट चेंज हो जाती है कि हम खुद ही वो ग्रूम नहीं कर पा रहे। मी एज एन एआई इंजीनियर वर्किंग इन द फील्ड, इंडस्ट्री फील्ड, तो मेरे लिए कभी कभार खुद मुश्किल हो जाता है कि यार इस टेक्नोलॉजी को क्या कहीं तो रोके जाके, कहीं तो स्टॉप करें। बट नहीं, इट्स मूविंग और ये चलती रहेगी।
It's a thing. Guys, do we have any more questions you can ask in the chat box? So I guess there aren't no more question. So few things that I would like to. Uh, it was a good session. I would say कि nice some nice questions that were here. और फर्दर ऑन हर बंदे को हर इंजीनियर जो मौजूद है एआई ने अपना हमें इतना इनेबल कर दिया कि वी कैन बी द क्रिएटर्स ऑफ द फ्यूचर। हम लोग अपनी कोई एक प्रॉब्लम को कोई एक सर्टेन प्रॉब्लम हम लोगों ने ले ली। इवन हम लोग नो मैटर हम लोग किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, मैकेनिकल से रोबोटिक्स से एवरी कोई भी फील्ड हो सकती है, हम लोग उसके अंदर कुछ इनोवेशन ला सकते हैं। हमें एआई इनेबल कर रही है टू स्टार्ट आवर ओन टेक कंपनी, टू स्टार्ट अ न्यू टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, क्योंकि एआई इज इनेबलिंग। आई वाज व्हेन आई रीड थिंक टैंक प्रोसेसेस, तो वो लोग एक ही बात करते हैं कि दुनिया में जितनी पॉपुलेशन है वी कैन एक्सपेक्ट दैट मैनी बिजनेसेस, अगर लोग सही से एआई को यूज़ करें। क्योंकि आई हैव नो बैकग्राउंड इन बिजनेस टू बी ऑनेस्ट, सही है, मैं एक अच्छी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट मुझे जो इश्यूज फेस होते हैं ना आज भी रिसेंटली फॉर मैनेजमेंट थिंग्स और फॉर दिस, तो मैं एआई को यूज़ करता हूँ, तो उसने मुझे हर चीज़ खुद बना दी। आई एम द इंजीनियर, आई एम द लीगल साइड ऑफ माई कंपनी, आई एम द प्रोजेक्ट मैनेजर, आई एम द क्रिएटर। एआई ने इनेबल किया, मैं खुद ज़्यादा नहीं करता क्योंकि उसने मुझे हर चीज़ इतनी ईजी कर दी। फॉर एग्जांपल कुछ टूल्स इतने ईजी ज़िंदगी में जिसने आसान बना दिया हमारे, अदर देन जीपीटी, गूगल स्टूडियो है, आपको प्रोडक्शन करनी है यू कैन यूज़ गूगल स्टूडियो। फॉर गुड रिसर्च फॉर डेवलपमेंट ऑफ गुड कोडिंग सिस्टम यू कैन यूज़ ग्रॉक। ग्रॉक मेरा वन ऑफ द फेवरेट थिंग है, तो वो कोडिंग वन ऑफ द बेस्ट कोडिंग करता है। क्लाउड है, क्लाउड ऑल्सो गिविंग यू द बेस्ट रिस्पॉन्सिव थिंग। और एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ी सी ऐड ऑन करना चाहूँगा, देर आर सर्टेन बिग कंपनीज, बिग टेक कंपनीज जो क्लाउड को एज एन एचआर मॉडल यूज़ कर रही है। और ये रिसर्च जब मैंने पढ़ी मैं खुद ही शौक था। सो जितनी सीवीज आती है ना डेली बेसिस पे, तो ह्यूमन मौजूद नहीं है, ह्यूमन को उन्होंने बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखा हुआ है एचआर के अंदर। तो वही सारी सीवीज जो है वो एचआर एक एजेंट उन्होंने क्रिएट किया हुआ जो पढ़ता है और पॉइंट्स निकाल लेता है। पैरामीटर्स के ऊपर सेट किया हुआ होता है उन्होंने कि भाई ये सीवीज आ रही हैं तो हमें किस तरह का बंदा चाहिए। इवन दो उन्होंने उस चीज़ को इंटीग्रेट किया हुआ अपने लिंक्डइन के ऊपर। एक रिसेंटली हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे थे विद बोइंग 777 रिक्रूटर, तो हम लोग उसके आइडिया के ऊपर एक प्रोजेक्ट बना रहे थे। तो उसने हमें एक चीज़ ये इंसाइट दी और फिर हम उसने हमें मिलवाया हमसे कुछ कंपनी के सीईओज के साथ और एचआर हेड्स के साथ कि यार ये हो रहा है और इसको और फास्ट पेस पे करना है। सो दैट्स हाउ वर्ल्ड इज चेंजिंग। सो लर्न, बी क्रिएटिव, प्रोवाइड सॉल्यूशन टू द वर्ल्ड, क्योंकि लोग याद रखेंगे फिर एक थिंक टैंक्स को याद किया जाता है सबसे ज़्यादा। दैट्स अ Sir, थिंग। in the beginning, you mentioned about that your company is working on HRM. I would like to know more about that, what HRM is, and basically किस तरह HR को आप लोग revolutionize कर रहे हैं. सो आई वुड से दैट कि मेरे ऑफिस के अंदर करंटली कोई एचआर मैनेजर अवेलेबल नहीं है। वी आर स्टाफ ऑफ अराउंड 20+ पीपल, और ऑन साइट जो डेली बेसिस के ऊपर आते हैं हमारे पास कोई एचआर मौजूद नहीं है। हमने एक सिंपल सा सिस्टम बनाया हुआ है जिसको हमने व्हाट्सएप पे इंटीग्रेट किया हुआ है कि जैसे ही बंदा ऑफिस में एंटर होता है वो अपना चेक इन करता है, और चेक इन जब ऑफिस से वाईफाई से कनेक्टेड होता है तो वो उसका चेक इन अप्रूव कर देता है बैक एंड के ऊपर। वो उसकी हर एक इशू को हर एक मतलब अर्ली लीव को अप्रूव कर देता है। हमने एक पॉलिसी सेटअप करके उस एचआर को ट्रेन कर दिया कि ये हमारी पॉलिसी है, वी प्रोवाइड अराउंड 4 ऑफ इन अ मंथ, सर्टेन केसेस के ऊपर हो जाए वी प्रोवाइड 4 आई वुड से पेड लीव्स, ये सिस्टम है। तो वो मुझे या फिर किसी और बंदे को मैसेज नहीं करता यार आई वांट एन ऑफ टुमारो या मैं कल नहीं आ पाऊँगा। वो उसी व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज ड्रॉप करता है कि भाई मेरा सर्टेन इशू हो चुका है मैं नहीं आ पाऊँगा, और वो उसकी अप्रूव
कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसकी लीव अप्रूव या डिसअप्रूव कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी। जो एक एचआर पॉलिसी फॉलो करता है वही एक एआई एजेंट, जो एचआरएम जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो उसी पॉलिसी को फॉलो अप कर रहा है। तो एक बंदा नहीं है कि वो फेवरेटिज्म करे, और वो न्यूट्रल है, बायस नहीं है किसी के साथ। प्लस जब हमारे प्रोजेक्ट्स, मुझे कोई प्रोजेक्ट देना होता है, सो आई जस्ट सेंड अ वॉइस मैसेज ऑन दैट सर्टेन नंबर कि फॉर एग्जांपल मुझे ये सर्टेन प्रोजेक्ट है, इसकी डेडलाइन इस 2 to 3 अगस्त और मुझे ये करवाना है। जब मैंने उसको ये मैसेज भेज दिया, वो बैकएंड पे जाके अपना एक पूरी चीज़ें देखते हैं कि भाई कौन बंदा है कि जो इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं, हु इज़ एलिजिबल। तो उसके पास 2 या 3 डेवलपर्स निकल के आते हैं। फिर उसको पता होता है कि भाई कौन सा डेवलपर इस वक्त फ्री अवेलेबल है, तो वो उसको जाके मेरा पूरा प्रोजेक्ट हैंड ओवर करा देता है। फिर वही उसको चेकआउट करेगा, मतलब वही उससे टाइम टू टाइम अपडेट्स देगा कि भाई आज के दिन में कितना, जो प्रोजेक्ट है वो कितने परसेंट कंप्लीट हो चुके हैं। और वो मुझे ला के बैकेंड पे मैसेज दे रहा होगा कि आज आपका सर्टेन प्रोजेक्ट 30% कंप्लीट हो गया, 40% हो गया, या कोई इशू आएगा तो वो उसी वक्त मुझे, मतलब वो जैसे ही माई डेवलपर उसको बताएगा कि भाई ये इशू आ रहा है, तो वो मेरे पास तक मैसेज पहुंच जाएगा। तो इतना ज़्यादा इनेबल कर दिया है कि वो लाइफ टू लाइफ टाइम अपडेट कर रहा है। अब इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ कि जब मैं मंथ एंड के ऊपर केपीआईज निकालना चाहता हूँ, मेरे पास एक्चुअल डेटा आ रहा है, मेरे पास बायस डेटा नहीं है, मेरे पास कोई फेवरेटिज्म वाला डेटा नहीं है। तो ये एचआरएम मुझे हर बंदे का बताता है, मैं उस बेसिस के ऊपर डिसीजन लेता हूँ भाई किसको प्रमोशन देनी है, किसको डिमोट करना है, किसको फायर करना है, किसका इंक्रीमेंट करना है। दैट्स द थिंग। तो हमने पूरा, क्योंकि हम हमें ये प्लान बेसिकली वहाँ से आया कि जब हम एनवीडिया के कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, तो उन्होंने एक बात बोली थी विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि द इन अपकमिंग एरास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि मुझे उनकी वो बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी और मैंने याद की थी उस वक्त। इन द अपकमिंग एरास द आईटी डिपार्टमेंट विल बी द न्यू एचआर डिपार्टमेंट। तो उस वक्त शुरू में तो मैं सोच रहा था यार हाउ इज दिस इवन पॉसिबल। आईटी वालों का काम होता है डेवलपमेंट साइड देखना, ये चीज़ें देखना टू रन बिजनेस स्मूथली। तब फिर हम लोग इस फील्ड के अंदर हमने इसके ऊपर रिसर्च शुरू की, अपने प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया। तो मुझे वो बात बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि अब आपने एक एचआरएम जैसे इतने इंपॉर्टेंट रोल को आपने ऑटोमेट कर दिया, आपको ज़रूरत नहीं है उस बंदे की। दैट्स हाउ टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग द वर्ल्ड। प्लस एक सेल्स गाय जो कि सबसे That's चीज़ होती है किसी भी चीज़ डिपार्टमेंट की, वो तक ऑटोमेट हो चुकी है। that's really interesting. Initially, when you discussed, and I thought, okay, maybe there's some admin side who's managing this system, but this is really shocking that AI is managing everything on its own. Yes, it is, and it's really scary. But अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करो, एंड इफ़ यू नो हाउ टू हैंडल द एआई, हाउ टू हैंडल द प्रोडक्ट्स, तो वो आपको कभी टेक ओवर नहीं करेगा। दैट्स द थिंग विच आई हैव लर्न past my experience. I am working in this field from 2020. Started learning, so now I guess it's 20. It's 5 years. Uh, I have learned that AI can not take over if you are strong enough to control it. If you aren't, so you will be like getting fired really soon. That's the thing. Thank you so much, sir. Thank you so much for such an informative session. Really enjoyed. Guys, if you still haven't dropped your questions in the chat box, you can always connect with him on his LinkedIn. Um, that said, thank you so much, sir, for taking the time for us and sharing such incredible insights. I would like to take a moment to present a token of appreciation from Ziauddin University Students Branch. Thank you. Just a second. Okay. Thank you so much, sir, for your time and sharing such incredible insights with us. Um, I would like to also thank each and every one of you who joined today. It's your support and enthusiasm that helps us keep going and inspire us to bring even more valuable sessions your way. We will be back next week, inshallah, with another insightful and exciting episode. Thank you so much, guys, and stay tuned. Thank you, everyone. It was a very, it's my pleasure to be connecting to the young minds. And I really enjoyed the session. Good questions.
And thank you, Vajia, for selecting me to be able to like present to the Jauddin. It's I would say the nostalgia feeling was coming throughout the session because I have learned a lot of things from Jauddin, and I'm a proud graduate from Jauddin. And it's a very good initiative that you have taken for like bringing the industry thinkers to your show, and it was very nice connecting. Thank Thank you you. so much, sir. We are honored that you took the time us for us and shared such incredible session. Thank you so much.